रुको, करते हैं इसको, आपको सॉल्व करवाते हैं आपको. सो just a second, let me take the snip of this question. इसमें कुछ नहीं करना था बच्चे. इसमें जो है आपको मोड, आपके दो इक्वेशन फॉर्म होंगे. या सो देखो, आपका जो मोड गिवन है, देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन मोड इज गिवन एज 32 and the frequency, total frequency, this is given as sum of frequency, means summation of frequency. Let's write it down first of all. ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं summation of frequency is given as 71. ठीक है, and mode is given as 32.5. Now tell me which is the modal class. Samina, Kiran and Karishma, which one is the modal class? Sir, 22. 22. So this is the model. Yes, very good. So this is the model class of this data set. Okay, Yes. I'm encircling it. So आपकी model class हो गई. ठीक है, so अब जल्दी जल्दी से आप F1 बताओ मुझे. F1 तो आपका Sir, ये हो गया, yes, sir. F0 हो गया, और ये F2. F2 हो गया. ठीक है, और दूसरी चीज आपकी होती है, आपको चाहिए होगा हाइट. हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले F0 is equals to x, F1 is equals to 22, F2 is equals to y. ठीक है, h is your कितना है h आपका 4 है. ठीक है, ठीक है. सो और हाँ, L आपका हो जाएगा 30. क्लियर है? सो वन मोर थिंग इज दैट if sum of frequencies is 71, so this is the total, this is, if you add them up, this will be equals to 21. So basically one equation is forming is x plus y is equals to x plus y plus 22 and 8 30, 30 and 7 37, 37 and 6 43. ठीक है, so plus 43 is equals to 71. If you add all the value, these frequency, this would be equals to 71. Yes or no? That's what the question is saying. Hello? Yes, sir. Okay, so 43 minus 71, this would be 70, and 43 50 27 28. So this would be coming out to be 20. X plus y is coming out to be 28. So this is your equation number 1. Okay, we have got one equation. We have to calculate, find out two variables. We got one equation. We have to form one more equation. So as per the formula of mode is equals to, जल्दी से formula बताओ. L plus F1 minus F1 F0 minus F0 divide by 2 F1 F0 minus F0 by minus 2 F2 into. F1 minus F2. Clear? Yes, sir. Into H. Into H. Now you have the mode 32.5 is equals to L is 30 plus F1 is what? 22 minus F0 is X. Twice of F1 is 44 minus X minus Y. Clear? Into 4. Clear? Subtract this 30, take this 30 on the left hand side, so it would get subtracted. What you will get is that what is left, 2.5 will be left, is equals to 22 minus X divided by 44. If you take minus common here, this would be X plus Y will bracket into 4. Now see this thing, you have got the value of X plus Y, which is Yes, sir. 28.
So you can substitute it right now. This is suppose your equation number 2. Can you substitute the value of x plus y? Because Yes, you will get the because if you do this thing, only one variable will be left, so we can get the value of x and then we can substitute the value of x to get the value of y. Okay, substitute equation 1 in equation 2. Okay, so 2.5 is equals to 22 minus x divided by 44 minus of पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं 44 minus 28. Clear? So it would left कितना बचेगा 16 बचेगा 16. हाँ 16 will be left. So 2.5 is equals to 22 minus x into 4 divided by 16. So this 4 will cancel this 4 times and 4 will go there. So 2.5 into 4 is equals to 22 minus x. ठीक है, so 2 ये आ जाएगा आपका 10. This would be after getting you will get the value as 10. So x 22 minus x is equals to 10. So if you rearrange this thing, x will be equals to 12. Now if you got the value of x, substitute this in equation 1. ठीक है, इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करो. सो x plus y is equals to 28. So your y will be equals to 28 minus 12. So is equals to 16. This is the answer. Am I clear, all of you? Please let me know. yes, Any doubt, Kiran, Samina, Karishma? no sir. समझ में आया? क्वेश्चन इजी था ना? हाँ जी सर, बहुत इजी था. करिश्मा गॉट फ्रस्ट्रेटेड. नहीं सर, आपके लिए तो इजी होगा ना. अरे यार देखो, सुनो, कुछ भी हमने ऐसा किया, चलो ये बताओ, कुछ भी हमने ऐसा किया जो मोड निकालते हुए हम ना करते हो? नहीं सर. वही किया ना? यस सर. चलो ठीक है, अभी लाइक अभी हम लोग ये जब हमारी बैच वाली क्लास होगी ना, तो उसमें मैं यही क्वेश्चंस कराने वाले था. अब लाइक आई डेंट नो कि ये क्वेश्चंस लाइक आपके टेस्ट वगैरह में, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके डाउट मतलब जो नहीं हुए ना स्टैटिस्टिक्स में, वो आप टिक करके रखो. अभी सर बैच स्टैटिस्टिक्स वाली भी लाइक अभी क्लास होनी पड़ती है. नहीं, वो कल होगी आपकी, जो हमारी बैच वाली होगी ना क्लास. अच्छा. हाँ, ये तो रिवीजन क्लास है हमारी. जो बैच वाली क्लास होगी वो कल होगी और वेंसडे नहीं, होगी. बैच वाली क्लास बहुत दिन से हुई नहीं है ना, तो इसलिए पूछी. हाँ, वो एक्चुअली जो ना मैंने फिजिक्स की क्लास शेड्यूल करा दी थी उसकी जगह. मैथ्स की क्लास हुई थी ना हमारी, वो फिजिक्स की क्लास हुई थी ना लगातार 2 दिन हमारी लास्ट वीक. यस सर. हाँ, तो मैंने उसकी मैथ्स की उस वो कर दिया था, स्वैप कर दिया था फिजिक्स क्लास से. तो अभी ये कल मंडे है हमारा, मंडे में क्लास होगी, वेंसडे में, क्योंकि मैं 2 क्लासेस ले रहा हूँ. मैं स्टैटिस्टिक्स के कंबाइन क्वेश्चन कराना चाहता हूँ. इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे. तो वो जब हम करेंगे ना, तो हो जाएगा. डोंट वरी, ठीक है. सो समझ में ओके देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आए कैसे होते हैं? यस सर. ये बताओ, यहाँ तक तो हमने वही चीजें की है जो हम करते आते हैं. ऑलरेडी हमें मोड गिवन सर था. एक्चुअली ये अनग्रुप था ना, लाइक 25 हाँ, से. या आप ये वाली चीज नहीं समझ पाए होंगे, इक्वेशन बनाने वाली. सर वो एक्चुअली मैंने ग्रुप कर दिया था, लाइक 24.5, 29.5. अरे 24.5, 29.5. जस्ट अ सेकेंड यार. अच्छा हाँ यार, ये डेटा तो वो है, एडजस्ट करना पड़ेगा इसे. सही कह रहे हो यार, आपने ध्यान अब दिलाया मुझे. एडजस्ट करना पड़ेगा. मैं पहले ही बोलने वाली थी, फिर मैंने सोचा कैसे होगा. अरे आपने तो याद है तो मुझे टोक देते ना वहीं पे. मैंने ध्यान नहीं दिया इस टेबल पे. देखो, हाँ सही कह रहे हो, एडजस्ट करना होगा आपको. एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं, 5 0.5 कर दो और 0.5 ऐड हो जाएगा. जस्ट अ सेकेंड. रुको रुको रुको. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. तो सर जब मैंने सॉल्व किया था, मैं एक्स और वाई हम्म. की, लाइक एक्स की वाई की आ रही थी, लेकिन एक्स की नहीं आ रही थी. अच्छा अच्छा अच्छा, 2 सेकेंड.
क्या आप दो ही तीन ही रहेंगे या क्लास में और कोई नहीं आया अभी तक? क्या बात है, बच्चे कम आ रहे हैं रिवीजन क्लासेस में पहले के मुकाबले। सब लगता है वो खुद का पसंद कर रहे लग, हैं। लगता है बच्चों ने पूरी प्रिपरेशन करके रखी है, रिवीजन के लिए ही नहीं आ रहे। ये सिर्फ क्वेश्चन पूछने जो नहीं आए हैं। आई डोंट वांट टू फील देम एम्बैरेस्ड। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो क्या फायदा। सर आपको पता है, एक बार केमिस्ट्री वाले सर ने, लाइक आई थिंक कोई स्टूडेंट था वो जाना चाहता था, तो सर ने उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे, वो आंसर नहीं दे हम्म। पाई। आई थिंक एक दिया था, तो सर ने बोला तुम कहीं नहीं जाओगे, अभी पढ़ोगे तुम। अच्छा अच्छा। सर वैसे हम कौन सा चैप्टर का रिवीजन करने वाले थे आज? वैसे हम ट्रायंगल्स करने वाले थे करिश्मा। ओके सर। हाँ सही, देखो इसको जरा मैं पहले यहाँ लिख दूँ एक्चुअली। यार मेरे एक तो जो है ना लैपटॉप आज सुबह 6:30 पहली क्लास से ही मुझे परेशान करके रख दिया इस लैपटॉप ने। क्या करूँ इस लैपटॉप का, सब कुछ तो एकदम बढ़िया रहती दोबारा, है। हाँ। तो दोबारा में देख के मारो कुछ सोल्यूशन। हाँ बहुत बढ़िया, फिर आपकी क्लास कौन लेगा? कहाँ से लूंगा मैं? फिर आप कहना सर आते ही नहीं है क्लास में पढ़ाने के लिए। देखो यहाँ देखो इनका जो डिफरेंस है प्रीवियस क्लास के अपर लिमिट का और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट का, दैट इज 1 20 30 -9 29 1 है। तो आप क्या करो 5 हम इसमें क्या करेंगे, इसका हाफ एडजस्ट करते हैं। हाफ एडजस्ट कैसे करते हैं, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में यू विल गेट ऐड 0.5। क्लियर? यस सर। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? ठीक है। तो आपकी यस। पहली फ्रीक्वेंसी पहली क्लास इंटरवल विल बी 24.5 5 माइनस एंड 29.5। माइनस नहीं है, 2। माइनस नहीं कहते इसे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट इज 29.5, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 0.5, सो दिस विल बिकम 34.5। अपर लिमिट ऐड हो जाएगा 0.5, सो 34.5 39.5। करिश्मा आप भी टोक देते तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी होती। तो ठीक अगर है। मेरा सही होता तो मैं लाइक टोक चलो देती, लेकिन मेरा ही गलत था तो मैं क्या टोक। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो 44.5 हो गया, कोई बात नहीं। मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, यही वाले यही तो ऐसे मुहावरे यही तो होता है ना। यस। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मिस्टेक करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। कभी भी करेक्शन की तरफ नहीं जाओ, मिस्टेक्स करने से ही आपकी करेक्शन होगी अपने आप ही। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है आपकी लाइफ पे और आपकी लर्निंग ग्रोथ पर। अगर आप यस। हमेशा करेक्ट की तरफ ही भागोगे ना, तो आप कभी लर्न नहीं कर पाओगे, हमेशा आप सिर्फ एक ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है x 22, y 8 7 3 एंड 3, ठीक है। तो अब इसको समेशन कर दो। समेशन तो आपका वही आएगा, FI = x + y + 43, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्यों बना दिया एक कॉलम, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो रुको यार मुझे दोबारा से स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। कहाँ गए मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इरेजिंग वाला काम कर लेते हैं। F0 तो ठीक है, L हमारा क्या हो जाएगा? L हमारा हो जाएगा 29.5, ठीक है। यस। और क्या चीज़ हमें एडजस्ट करनी थी? ये सब तो ठीक है, मोड भी ठीक है, मॉडल क्लास ठीक है, सब चीज़ ठीक है। हाइट आपकी 4 ही है, ठीक है। हाइट तो आपकी 5 हो जाएगी ना? 5 है सर। 5 हो जाएगी, आपकी हाइट 5 हो जाएगी, क्योंकि 29 में से 34 कैंसिल होगा तो 5 हो जाएगी, आपकी हाइट इज 5। तो हम लोग ये इरेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो आपकी यही रहेगी x + 28, ये चीज़ तो नहीं चेंज होगी इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि देखो ऐड करोगे, इफ यू ऐड देम फ्रीक्वेंसी तो ऐड करो ना आप सिर्फ FI, और ये आपकी क्लास इंटरवल है। क्लियर है? यस।
हाँ, तो ये चीज़ तो यही रहेगी, बस हमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, जो कि करिश्मा अगर टोक देती सर तो थोड़ा नहीं, पूरा ही करेक्शन है। पूरा ही करेक्शन है। हाँ, करिश्मा को टोकना चाहिए था उसी वक्त। देखो, कभी कभार अरे मिस्टेक होती है टीचर से भी, और स्टूडेंट को सर, दिखती है तो बच्चे टोक से भी देना होती चाहिए। है, बच्चे से भी नहीं, होती है। बच्चों से तो होती है, नहीं टीचर से भी होती है। चलो देखो, 29.5 सब्सिट्यूट करते हैं यहाँ पे, प्लस Fi is 22 माइनस एक्स अपॉन 2, ये 44 माइनस एक्स प्लस वाई, आप ब्रैकेट ले लो ये, और इनटू में 5 ले लो। सब ज्यादा कुछ नहीं करना होगा यहाँ पे, आपको अगेन वही चीज सब्सिट्यूट करनी होगी। देखो, अगर आप यहाँ पर 25 को उधर लेके जाते हो, 29.5 को उधर लेके जाते हो, 32.5 था आपका ये, तो 29.25 एंड 32 माइनस, बेसिकली 32.25 माइनस 29.5, तो ये आपका बचेगा 3। ठीक है, सो 3 इज लेफ्ट, यहाँ पे सिर्फ 3 मिस्टेक 3 आएगा, और 3 × 5 आपका 5 है। ठीक है, तो ये, रुक जाओ, यहाँ क्या बचेगा आपका 28, और 5 है ना यहाँ पे, यहाँ कितना होगा आपका, ये कितना आ रहा है आपका, 16 आ रहा है ना। आंसर तो सही जा रहे हैं ना हम। कोई और चीज़ तो मिस्टेक नहीं की, पहले रेक्टिफाई कर लेते हैं। F0 इज x, F1 इज 22, F2 इज y, H इज 5, L इज 29.5। ठीक है, ठीक है, 22 8 कितना होता है आपका, 30 37 37 और 6 43 43 माइनस 70, ये आपका आ जाएगा 50, 7 इधर 20 27 और एक 28। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 30, इट वुड गेट सब्ट्रैक्टेड 3 आ जाएगा। ठीक है, सो आपका आ जाएगा 43, ये सब अगर इसको डिवाइड दोगे तो ये दिस वुड बिकम 3.2। ठीक है, सो 3.2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 22 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 3.2 इंटू 2 इज वॉट, 9.6 इज इक्वल्स टू 22 माइनस एक्स, सो x is coming out to be 22 माइनस 9.6। यार, फ्रीक्वेंसी तो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए आपकी, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि सारी चीज तो हमने ठीक करी है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी, चलो लेके चलते हैं, 22 पॉइंट माइनस, ये कितना आ जाएगा आपका, 22 में से 9 गए, 12.4 बचेगा आपका। x की वैल्यू अगर आपकी 12.4 आ रही है, तो आपकी y की वैल्यू आएगी, अ, ये आपका बचेगा 26, ये आपका बचेगा 25.4। y की वैल्यू ये आ रही है आपकी। हम्म, 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 हम्म। करिश्मा, आपको सॉल्यूशंस मिले इसके? सॉल्यूशंस नहीं दिया उन्होंने। नहीं दिए? अच्छा, रुको जरा अब, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है पॉइंट में, जो कि बट से इन्होंने मेरे को 2 मार्क्स दिए थे, आई थिंक 5 का या 4 का था। हम्म सो एक मेरे एक्स और वाई का आंसर नहीं आया था, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर वाले सॉल्व किया था, तो इन्होंने दोनों। जस्ट अ सेकेंड।
यही आएगा आंसर, तो इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता आंसर। आपने कितना सॉल्व किया था, यही सॉल्व किया था? कोई नहीं, हाँ मैं राइट। क्वेश्चन पेपर ले लूंगा उनसे, एक दफ़ा मैं उसमें चेक कर लूंगा। मुझे कुछ लग रहा है या तो ये मीडियन होगा, ये चीज़ जो होगी, या तो ये मीडियन होगी। मैंने जब ऑनलाइन देखा तो वहाँ पे लाइक मीडियम आ रहे थे सेम क्वेश्चन। नहीं, मीडियन तो आ रहा है, मोड वाला क्वेश्चन भी होता है ये, बट या तो इसमें वैल्यूज चेंज कर इन्होंने, आई डोंट नो कि क्या मसला है इसका, या तो मीडियन है या मोड है। मैं वो कोई नहीं, तो इसको देख। क्वेश्चन देखूंगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी पॉइंट में आ रही है, सो दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट पॉइंट में, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज आपकी इंटीजर्स है तो ये पॉइंट में, सो ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन को देखता हूँ। ठीक है करिश्मा, बाकी ये सॉल्व इसी तरीके से होगा। मुझे सिर्फ या तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में या तो ये कोई सी मोड गलत गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, बाकी आपका ये जिस तरीके के स्टेप्स होंगे यही होंगे। हाँ तो आपने हाँ, अच्छा आपने सॉल्व नहीं करा पूरा? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 ली थी ना? अच्छा नहीं, आपने ट्वेल्व पॉइंट कहा फोर नहीं। वो ठीक है ठीक है सॉल्व ठीक है। करा ना आपने? हाँ जी सर, ठीक है ठीक ठीक है, सो यही है। क्लियर? है। ओके सर। हाँ, चलो अब आधा घंटा तो हमारा पास आउट हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग बाकी टाइम में फिजिक्स का नाम रहा है, मैथ्स कर लेते हैं। ठीक है, सो रुक जाओ। अच्छा, एक चीज़ और, कल मुझे गूगल फॉर्म्स शेयर हुए थे बच्चों के, जो आपको रिस्पॉन्स के लिए फिल करने के लिए दिए होंगे कि किस किस का कौन सा। वीक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करिश्मा इज वेरी स्मार्ट। नहीं सर, वो मैंने फॉर्म फिल किया था तो हाँ, याद। मुझे याद है, मैंने बच्चे देखा था आपका रिस्पॉन्स। समीना और किरण, आपने फिल किया था? Sir, I tried 3 times, didn't work any of the times. ओके, समीना यू डिड? सर सेम। ओके यार, रिस्पॉन्स तो अभी तक एक्सेप्ट पर है, ओपन। अच्छा रुको, मैं आपको शेयर करता हूँ, अभी आप फिल करो। ठीक है, मैं आपको चैट में सेंड करता हूँ। आप लोग चैट में इसे एक्सेस कर पाओगे? Yes, sir. ठीक है, चलो मैं आपको इसमें, करिश्मा आपका सिर्फ ट्राइंगल्स पोर्शन इज नॉट स्ट्रांग ना? नहीं सर, तो किसने बोला? मैथ्स में कौन सा पोर्शन स्ट्रांग नहीं है आपका? अच्छा हाँ, सर ट्रिगो ट्रिगो, सॉरी मैंने हाँ वही वही। और ये हाँ, सरफेस एरिया वाला सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई आई बात थिंक नहीं, 3 चैप्टर्स कोई आए। बात नहीं। सरफेस एरिया में तो ज़्यादातर देखो आपका पूरा वो बेस्ड है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन लाइक फॉर्मूला बेस्ड, तो वो चीज़ हम क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बाकी रहा करिश्मा चौधरी 990, ट्राइंगल्स आपका स्ट्रांग नहीं है करिश्मा, आपका ट्रिगो और सर्कल स्ट्रांग नहीं है। क्लियर है? तो ट्राइंगल्स तो आज हम करने ही जा रहे हैं। ठीक है, और ट्राइंगल्स में कहाँ दिक्कत आ रही है स्पेसिफिकली, ये बताओ आप मुझे। समीना एंड किरण, आपसे एक्सेस हो गया फॉर्म बचे? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक, हाँ जल्दी से फॉर्म फिल कर दो आप। अभी तक मतलब ओपन है, रिस्पॉन्सेज तो ओपन है, बट हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू उस टाइम पर आपके एंड पे। ठीक है, तो मुझे इतने वो दे दें दो आप, मैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पोर्शन। हाँ करिश्मा, आप बताओ इतने, आपको स्पेसिफिकली कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है? सर जो प्रूव वाला होता है वही। प्रूफ वाला होता है वही, प्रूफ वाले तो करिश्मा इसमें तो बहुत नहीं सारे हैं। नहीं, मेरा मतलब देखो, एक होता है वैल्यू वाला, लाइक उसमें वैल्यू हाँ की होती है कोई 17 16 whatever। हाँ 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 और हाँ। दूसरा होता है ये प्रूव वाला, इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, ओके,
चलो कोई नहीं, अभी क्वेश्चन भी करते हैं उसके और कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, डोंट वरी। So I have submitted the form. ओके डियर, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। करिश्मा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करनी होगी। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सजेशंस बताता हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग, मैं डिटेल में कवर करवा दूंगा आपके साथ अलग से क्लास लेके, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री की होगी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा कहाँ दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री में करिश्मा? सर सबसे ज्यादा दिक्कत है जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 10/cos इक्वल्स टू sec प्रूव करो। 10/? सर लाइक एग्जांपल दे रही हाँ हूँ हाँ मैं। हाँ हाँ। 10/cos इक्वल्स टू cos/sec प्रूव करना है। हम्म। तो वो वाला वो लाइक वाला, दूसरी वाली तो आती है। अच्छा देखो, कोई बात नहीं, मैं अभी हम जो क्लास में करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, बट मैं अलग से क्लास शेड्यूल करके जो भी देखो देखता हूँ मैं समीना का और किरण का किस किस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट है। 2 मिनट दो आप लोग मुझे। So the form didn't work again. फॉर्म डिडंट वर्क अगेन डियर, आप कोई और डिवाइस यूज कर लो अगर इससे मैंने आपके 2 लिए। यूज किए, दो बल्कि यूज 3 किए? यूज किए लिखिए। ओके। सर एक को ये पढ़ने ऐसे के। बोल देंगे ना ये आप चैप्टर्स के नाम बोलो अच्छा वो अच्छा, बोल देंगे वीक है स्ट्रॉन्ग है। नहीं उससे थोड़ा सा वो, लाइक आपके सामने फॉर्म रहता है, उसमें पूरा डिटेल्ड आप एनालिसिस बताएंगे अपना। अभी के लिए तो नहीं है ना हाँ पॉसिबल। रुको रुको। अच्छा, समीना के भी ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है, मतलब वीक पोर्शन है। चलो आप किरण, आपका वीक पोर्शन कौन सा है मैथ्स में, ये बता दो आप मुझे। स्क्रीनशॉट भेज दो। हाँ स्क्रीनशॉट भेज दो, ऐसे करो, लिख लो आप वीक टॉपिक, वीक चैप्टर्स, उसका स्क्रीनशॉट मुझे इसी चैट में सेंड कर दो। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। सो समीना के 3 टॉपिक्स। समीना आपने अरिथमेटिक की क्लास, एपी की क्लास ज्वाइन की थी? नो सर। ओके, चलो कोई नहीं, अलग से कुछ क्लास शेड्यूल करके आप इसके शुरू करते हैं। एपी वो सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, ये भी नहीं ज्वाइन की थी आपने? सर आई डिड। ओके, तो समीना देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज दैट आई विल शेयर अ लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट। थ्योरी एटलीस्ट आपको कवर करनी होगी, जो थ्योरी पोर्शन है। देखो, एज यू ऑलरेडी नो दिस थिंग दैट द टाइम इज वेरी कंसाइज। तो थ्योरी पोर्शन आपको, मैं एफर्ट्स व्हाट आई विल डू इज दैट वी विल do the numericals as well as the applications of the questions। ठीक है, सो थ्योरी पोर्शन आपको रिकॉर्डिंग से एटलीस्ट रिवाइज करनी होगी डियर। ठीक है, आपने क्लास में तो किया होगा ये चैप्टर। यस सर। हाँ, तो थ्योरी पोर्शन बच्चे आप वहां से कवर एटलीस्ट रिवाइज करके आना। जब हम क्लास शेड्यूल करेंगे इसके लिए, तो आप थ्योरी पोर्शन कवर करना। ठीक है, और फिर हम उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह और उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सर द ओनली थिंग इज दैट आई कैन नॉट फॉर्म इक्वेशंस। ओके कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, उसको हम लोग कोई आप वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो ना? यस सर। हाँ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। ओके समीना, ओके किरण, ये आपका ट्राइंगल्स आपका भी वीक पोर्शन है, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ओके, सिर्फ ये 2 पोर्शन आपके वीक है किरण? हाँ बस। ठीक है, ओके डियर, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, और सब कोई सही बात है नहीं। सर। हाँ और सब सही है। सही है भाई। सर हाँ करिश्मा। लाइक लाइक 2 सब्जेक्ट वीक है लाइक 2 टॉपिक्स वीक है हम्म 14 में से 2 लाइक 12 उसके Oh, no, it's तो not like that. It's like then the other topics or the हम्म chapters are not exactly weak, they are moderate. they are moderate in which, like Yeah. these are the chapters in which you are underconfident, right? Yeah, I can या say that. या ओके ओके, चलो कोई नहीं। सो देखो, चलो ठीक है। सो सबसे पहले देखो करिश्मा, ये ये सर वाले क्वेश्चंस अब देखो यार, ये क्वेश्चंस तो आपके उससे रिलेटेड है पाइथागोरस से, ये पाइथागोरस तो डिलीट हो गया, ये तो करना नहीं है हमने, फालतू में टाइम वेस्ट होगा।
चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी समीना और डी? एक्चुअली बी और डी सेम ही लग रहा है, आप बोल रहे हो तो। सर बी। बी, अच्छा समीना सेड बी। करिश्मा एंड किरण, व्हाट्स योर आंसर? सर मेरा आंसर भी बी है। अच्छा आपका आंसर भी बी है, ओके ठीक है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चलो ठीक है। चलो बहुत देखते हैं इसको। गलत जवाब। बिल्कुल गलत जवाब। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों। अब आप देखो, आपको साइड्स गिवन है that AB is proportional to QR, BC is proportional to PR and CA is proportional to PQ। इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग नेमिंग करेंगे ट्राइंगल्स की। ठीक है, ट्राइंगल्स की नेमिंग करेंगे। ये तो ऐसे ही उन्होंने रेंडमली क्वेश्चन में दे दी कि ABC, अगर आप देखो ना ABC तो आप कहीं से भी बोल सकते हो ना ट्राइंगल को, बट हमें नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द सिमिलर वन। तो नेमिंग इस वजह से यहाँ पे आपको नेक्स्ट ये पूछा है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो AB इज सिमिलर, AB इज प्रोपोर्शनल टू QR। ठीक है, यानी कि अगर मैं दो ट्राइंगल्स फॉर्म करूं, चलो जस्ट ए सेकेंड, मैं दो ट्राइंगल्स ऐसे ही फॉर्म कर देता हूं। ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम वो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ जो आपको सबसे इजी लगेगी। ठीक है, तो उसी को आप फॉलो कर सकते हो कभी भी आपको अगर इसमें डिफिकल्टी फेस हो तो। दो ट्राइंगल्स हैं, क्वेश्चन इज सेइंग दैट AB इज प्रोपोर्शनल टू QR। तो हम लोग क्या करेंगे, AB इज प्रोपोर्शनल, ये AB हमारा है तो ये QR के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? BC इज प्रोपोर्शनल टू PR, तो ये आपका P हो गया। BC इज प्रोपोर्शनल टू PR एंड CA और AC इज प्रोपोर्शनल टू PQ। ठीक है, देख रहे हो ना आप, AB इज प्रोपोर्शनल टू QR, BC इज प्रोपोर्शनल टू RP एंड CA इज प्रोपोर्शनल टू QP। अब देखो ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू QRP। कौन सा क्वेश्चन है भाई? QRP नहीं है? रुक जाओ फिर देखते हैं आपका किस में है। ABC और PQR, A इज CAB, PQR। और ये एक चीज और, एंगल A इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल B इक्वल होगा एंगल R के, और एंगल P इक्वल होगा एंगल C के। ठीक है, अब मैच करो एंगल A और एंगल Q किस वाले में इक्वल आ रहा है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, एंगल Q और एंगल A इक्वल आ रहे हैं, एंगल P और एंगल C भी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, और एंगल R और एंगल B इक्वल आ रहे हैं। यस, यानी कि ये ऑप्शन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग इस पे सर्कल कर लेते हैं ऑप्शन, और बाकी भी वो करके चलते हैं। P और A, भाई ये तो गलत हो गया। P और A तो बराबर ही नहीं है, P और C बराबर है ना, यस और नो? यस। ठीक है, देखो ऐसे एनालाइज करो आप, हमेशा क्वेश्चन को जस्ट आंखों से देख के नहीं, लिख कर एनालाइज, ऑलवेज एनालाइज द क्वेश्चन इन दिस मैनर। अब यहां से आपको पूरे अपने टॉपिक्स गो थ्रू हो जाओगे एक ही बार में, सारे क्राइटेरिया से, SAS हो और आपका एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हो, या फिर आपका, सॉरी एंगल साइड एंगल नहीं होता इसमें, SAS होता है, साइड 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 होता है, या एंगल एंगल होता है। ठीक है, क्योंकि ASA इसमें नहीं होता ना, दो साइड्स आपको प्रोपोर्शनल चाहिए होती है। और आप देखो B और Q, भाई ये भी गलत है। B और P, B और P नहीं, B R के इक्वल होता है, यानी कि ये भी गलत है। सिर्फ फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो हमने नेमिंग तो कर ली, लेकिन फिर हमें उसके दूसरे बात देखना पड़ रहा है, भाई यहाँ पे तो सब में ही सेम आ रहा है, लेकिन हमने फिर क्या स्ट्राइक किया हमारे माइंड को कि एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग्स कौन से हैं। क्लियर है? यस सर। किरण एंड समीना, इज दिस क्लियर टू यू डियर एज वेल? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है,
ठीक है, तो इस तरीके से एनालाइज करना चाहिए आपको। ठीक है, नेमिंग से यही वजह थी इस क्वेश्चन को मुझे देने के लिए, क्योंकि नेमिंग से आप कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पे जब आप करोगे तो आप सारे अपने उसके क्राइटेरिया से गो थ्रू हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये क्वेश्चन है कि टू लाइन सेगमेंट्स आर देयर, ठीक है, एंड पी ए इज इक्वल्स टू 6, पी सी इज इक्वल्स टू 2.5 एंड पी डी इज इक्वल्स टू 5, ए बी पी, ए पी बी इज 50, ये वाला 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो यस कितना हो जाएगा ये ये वाला 50 जो मैंने होगा ना। मार्क, हाँ ये कितना हो जाएगा ये वाला, बताओ। ये भी तो 50 हो जाएगा ना, लाइन इंटरसेक्ट करती है सर वर्टिकली ऑपोजिट टीचर एंगल। बोला 50 होगा। अच्छा अच्छा, करिश्मा मैंने जब भी तो पूछा आपसे दोबारा से कि मैंने कहा कितना होगा, मुझे सुनाई नहीं दिया था ना उस टाइम पे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, 50 हो गया, वेरी गुड करिश्मा। ठीक है, 50 हो गया। अब हमें निकालना है एंगल पी बी ए, पी बी ए, पी बी ए, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, और अब देखो क्वेश्चन इज सेइंग समथिंग, देखते हैं। हमें ये देखना, ये देख लेते हैं कि ये ट्राइंगल्स जो हैं, दो ट्राइंगल्स, ये सिमिलर मतलब प्रूव हो सकते हैं या नहीं। देखो एक एंगल तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड। देखो अगर मैं इस ट्राइंगल की ए बी पी की देखो देखो ए बी पी की नहीं, 2.5, 50 हो जाएगा ये, साइड एंगल, साइड ए बी पी इज सिमिलर टू, कैसे ले या फिर नॉट सिमिलर, दूसरे ट्राइंगल का नाम लेना है तो ए पी बी, सॉरी ए पी पी बी, ए पी बी हो गया, पी, और ये ए पी एंड डी पी सी, 25, 5/6, हाँ ठीक है। देखो ए पी बाय डी पी लो, ए पी बाय डी पी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा बीपी एंड पीसी, बीपी एंड पीसी, बीपी एंड पीसी कैसे होगा, देखो एपी की वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू बीपी की वैल्यू क्या आ रही है, बीपी की वैल्यू कितनी है 3 3 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू कितनी है 2.5 पीसी की 5, 2.5 नहीं पीसी की वैल्यू 2.5 है, ये एक 10 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो ये कितना हो गया 30, 5 6 से 30, 5 5 से 25, प्रोपोर्शनल है साइड्स। यस सर ठीक है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि देखो ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल और बीच वाला एंगल इक्वल है, तो यानी कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो सिमिलर। यस सर ठीक है, अब सिमिलर है तो एंगल डी देखो पी डी सी, एंगल डी ए के बराबर होगा 30 डिग्री। देखो यस और नो, यस सर 30 और 50 कितना होता है 80, सम यस ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी 100 हो गया। बोलो क्लियर है। यस सर ये 100 कैसे आया, ये समझ में आया आपको, यस सर 180 minus 80 100 180 माइनस 80, वेरी गुड, तो आपका वैल्यू कितना है 100 पीवी है, यही तो कैलकुलेट करना है तो आपको। अब देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, दो ट्राइंगल्स गिवन है डी ई एफ पी क्यू आर, एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल आर एंगल ई के इक्वल है, कौन सा ट्रू है, दो ट्राइंगल्स फॉर्म करो।
Sir, there are only two options. Yes, Samina? There are only two options. No, options, there are 4 options. अच्छा, just a second, let me scroll it. 4 options है ये. I think B. Okay, Samina said B. Kiran, what's your answer? Karishma, what's your answer? So you said B. Option B. Option B. Karishma, what's your answer? So B. B. अच्छा, ठीक है. So all of you are saying B is the correct one. ठीक है. ठीक है, ठीक है. चलो, that's great. Let's solve it. So yeah. So angle D और angle Q are equal. Angle R and angle RE is equal. तो already triangle similar है क्योंकि 2 angles are equal. ठीक है. Similarly हम लोग यहाँ पे ये दोनों को मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ. नेमिंग चेंज कर देंगे बस. ठीक है. तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेमिंग चेंज कर देता हूँ. So naming is angle D is equals to angle Q. इसको ले लेते हैं एंगल D Q और एंगल R is equals to angle E एंगल R P लिया जाएगा F. ठीक है. ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है. तो ये ऑलरेडी 2 एंगल इक्वल है, तो यानी कि सिमिलर है ये. यस और नो? तो अब यहाँ देखो, DF by PQ will be equals to DE by QR will be equals to FE by PR. ठीक है. अब देखते हैं EF by PR is equals to DF by PQ. तो यानी कि हमें नॉट ट्रू वाला फाइंड आउट करना है. ट्रू तो ये ट्रू है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. ठीक है. DE by PQ is equals to EF by PR. ये भी तो ठीक है. नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं, सॉरी. DE by QR होना चाहिए. तो ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं. अभी लेके चल रहे हैं, अभी आगे रुको. फिर उसके बाद देखते हैं. DE by QR is equals to DF by PQ. ये भी नहीं हो सकता. करेक्ट है, ऑप्शन ट्रू है ये. EF by RP PR is equals to DE by QR. ये भी नहीं हो सकता. करेक्ट. इट मीन सो वेरी गुड. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्लियर? ठीक है. Yes. ये वाला कैलकुलेट, ये वाला देखो जरा. Two triangles are given and two angles and of those two triangles two angles are equal and one side is 3 times of another side. Then the triangles are congruent or similar but not congruent, neither congruent nor similar, congruent as well as similar. They're similar but not congruent. Similar but not congruent according to Kiran or Samina. Samina. Okay, Samina. ठीक है. Okay, Kiran and Karishma, आप लोग बताओ. What will be the correct one? Samina said it's कौन सा है? Similar but not congruent ना Samina? B1 Yes. ना? ठीक है. Samina Yes. said B. Let's find out.
Yes, sir, same. Option B. ठीक है, Option B. option B, yes, similar but not congruent. Very good, it's correct. Very good. Because we don't know about the another like other parts. We only know this. So two similar triangles are there. Sorry, two angles are given and one side is given. Clear? So it's already similar. तो ABC आपके इक्वल है और आपकी साइड्स का रेशियो इज 1/3. फाइंड आउट द एरिया ऑफ PRQ एंड BCA. ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है. जस्ट हिंट दे देता हूँ, BPT थ्योरम सुनी होगी आपने. और ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का भी एक वो रिजल्ट भी है ये. तो देखो, ये आपको ये टॉपिक ये कट बेसिकली इट्स ओमिटेड. सो इसका वो होता है कि अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर होते हैं ना, तो उनका जो एरिया होता है इज नथिंग बट दिस प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स. तो दीज साइड्स आर ऑलरेडी गिवन, सो स्क्वायर देम इट वुड बिकम 1/9. तो ये रेशियो ये आपका ये होगा. क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप. ये सिमिलैरिटी से इक्वल है क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, देखो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, जो मेन क्वेश्चन था ये वाला. तो इसलिए कर लिया हमने, बट आएगा नहीं है. ये वाला क्वेश्चन देखो, आपकी ABC और DFE आर सिमिलर ऑलरेडी. आपको फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है. अप्लाई सम क्राइटेरियाज टू फाइंड आउट. So which question I have to do? This one, it's ninth one. Okay. Yeah. Again B. Okay. So mine is D. Okay. Karishma said D. Samina said B. Similar. What? Oh, similar. Kiran, what's your answer? Option D. ऑप्शन डी. चलो ठीक है, देखते हैं किसका. लाइक मेजोरिटी तो डी की आई है. कोई बात नहीं, कभी कभार मेजोरिटी गलत होती है, माइनॉरिटी सही होती है. आपका मतलब है B सही है? हाँ. नहीं, ये नहीं कहा मैंने, ये अभी कैलकुलेट करेंगे ना हम. देखो, मतलब तो वही था. नहीं, अभी देखते हैं ना. मैंने कहा समीना सेड ओनली बी. तो समीना इकलौती हैं जो कह रही है बी है, और आप लोग कह रहे हो कि डी है. समझ गई. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कहते हैं. देखो, आपके दो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर है. ठीक है,
अब 2 ट्राइंगल्स हैं तो भाई यार बार बार क्या ट्राइंगल्स ड्रॉ करूं मैं, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मेरा तो काम आसान हो जाता है। आप लोगों का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो, अरे यार इस टाइम पे मत हैंग हो प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। लैपटॉप इज, आप लोग किस डिवाइस से, मतलब लैपटॉप से लेते हो या फिर आप टैब वगैरह है आपके? सर मैं तो लैपटॉप से लेती हूँ। आप लैपटॉप से लेती हो, चलो ठीक है। क्योंकि बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीन शेयर करके बेसिकली क्या है ना, स्क्रीन शेयरिंग इज अ वेरी सीपीयू इंटेंसिव टास्क एज वेल ना, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है फिर सीपीयू भी, तो ये वजह से। तो देखो ए बी सी और डी एफ ई, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग कर देंगे सबसे पहले। ए बी सी डी एफ ई, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर है तो इसी के अकॉर्डिंग लेना, अपनी तरफ से नहीं लेना। एंगल ए 30 है तो एंगल डी भी 30 हो जाएगा भाई, सिमिलैरिटी से। एंगल सी इज 50, एंगल सी ई भी 50 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, 100 हो गया, बोलो। यस सर। हो गया ना 100, एंगल सम प्रॉपर्टी। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एंगल एफ आपका 50 है, नहीं एंगल 50 तो नहीं है कट, एंगल एफ 100 है, हाँ एंगल एफ 100 है। एंगल डी 30 है, एंगल डी भी 30 है। अभी ई एफ के बारे में और बात कर लेते हैं ना। यानी कि साइड्स इस एंगल एफ इसमें, और एंगल डी 100 तो नहीं है, एंगल डी तो 100 नहीं है। तो आपका एफ और डी में 30 है, तो इस ये वाले आपके दो ऑप्शंस हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है। तो अब कैलकुलेट देखो, अब ए बी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू 5 है, और ए सी की वैल्यू 8 है, और डी एफ की वैल्यू इज डी एफ 7.5। देखो 5/7.5 अगर हम करेंगे तो इट वुड बी, डेसिमल हटाया आपने 10 आ जाएगा, तो ये कितना होगा 50/75, तो 10, ये कितना हो जाएगा 15, और ये 2, और ये आ जाएगा 3। सो आपका ये 2/3 आ गया, क्लियर है, बोलो। टू यस बाई सर। थ्री रेशियो है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, 2/3 रेशियो है तो इसको 8/x से, ये x मान लेते हैं हम लोग, x मान सकते हैं ना इसको, क्योंकि हमें x साइड का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, x विल बी इक्वल्स टू 2 4, इट वुड बी इक्वल्स टू 12, हाँ 12 हो जाएगा, तो ये आपके आ गए 12। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू, डी ई की वैल्यू, इसमें कहा है इसने d की वैल्यू 12 है, ई एफ की वैल्यू इज 12। ई एफ, हमें ई एफ के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं ना बच्चों, ई एफ कैसे बता सकते हैं हमारा 12 होगा, ना ही बी सी गिवन है, अगर बी सी गिवन है तो हम ई एफ की वैल्यू भी निकाल सकते, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखा, समीना वाज राइट। अब समझ में आया आपको, यस सर। मैंने कहा था ना, कभी कभार एक वोट भी मैटर करता है, कि हमें लगता है कि हम लोग क्या कहते हैं, जैसे समीना वाज थिंकिंग कि यार मैंने कहीं आंसर गलत तो नहीं दे दिया, बट समीना वाज राइट। सो आप लोग अपने आंसर पे हमेशा स्टक रहना, अगर आप एक आंसर दे रहे हो तो पहले अच्छे से उसको करके फिर उस पर स्टिक हो जाओ, ठीक है। यस सर। क्लियर है, समीना करिश्मा एंड किरण, समझ में आया, देखो। जी सर। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। ठीक है, तो ये हमारा आज का पोर्शन यहाँ पे होता है क्लियर। कोई डाउट इसमें यहाँ तक, प्लीज लेट मी नो। नो सर। अब देखो इन क्वेश्चंस में आपको हर एक एक अपना क्राइटेरिया जो होता है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, वो अप्लाई करना पड़ रहा है, यस और नो। भाई आपको एंगल साइड एंगल भी, आपको सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ रही है हर एक एक छोटे से क्वेश्चन को, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। अरे बोलो हाँ या ना, सर। करनी पड़ रही है ना। तो यही क्वेश्चंस देखो, इससे ये दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेसिकली बिल्ड योर, यू कैन से एनालिटिकल माइंडसेट। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके दिखने में छोटे होते हैं लेकिन आपके मार्क्स ये 1 नंबर का होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए बोर्ड्स सेटर पे जो भी सेट करेगा पेपर, टीचर जो वैल्यूएटर होता है, ही कैन और शी कैन पुट दिस क्वेश्चन, ठीक है।
क्योंकि ईएफ देखो बीसी के बारे में तो कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है यहाँ पे, देखो बीसी के बारे में कहीं वैल्यू गिवन है बीसी या ईएफ के बारे में, तो हमें आइडिया नहीं होगा कि क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर देखो हमारे पास रेशियो तो आ गया 2/3 होगा, बट इट कैन बी एनी नंबर। अगर 2/3 को आप लिख सकते हो 4/6, 4/6 इसको भी और भी लिख सकते हो तुम, आप लोग इसको और कर दो 16, 2/3 करना है ना, 8/18 कर दो, 8/18 नहीं, 8 4 2 12, 8/12 कर दो। आप देख रहे हो 4 2 8, 4 3 12, 2/3 आ रहा है ना रेशियो। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, आपकी साइड का रेशियो फिक्स रहता है। अगर रेशियो कह दिया आपने तो वो फिक्स रहता है, बट आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए। एग्जैक्ट नंबर आपका एसी का और डीई का गिवन था, ठीक है, तो एसी 8 था एंड डीई वॉज 12। 12 डीई कैलकुलेट करने पे कितना आया 12, क्योंकि इक्वेशन से हमने एक्स मान लिया इसको, और 8 यहाँ पे हमारा रेश प्रोपोर्शनल होते हैं इफ ट्राइंगल इज सिमिलर, तो एक्स विल बी कमिंग आउट टू बी 12। सो दैट्स व्हाई डी बी ऑप्शन करेक्ट इंस्टेड ऑफ डी। ये एक चीज करेक्ट है, बट ये वाली चीज हमें मेंशन ही नहीं है ना, इस वजह से हम लोग इसको नहीं इंक्लूड करेंगे इन आवर आंसर्स। आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से।